Hallelujah. You know, I was just thinking about کہ اس دنیا میں سب شخص, you know, everybody wants to be successful in this world. If you are a student, you want to be successful in your education. If you are a parent, you want to be a successful parent. If you are a husband, you want to be a successful husband. Or a wife, you want to be a successful wife. We want success in our life. You know, I was just thinking about, میں success کے متعلق پڑھ رہا تھا, میں اس کے ترجمے کو دیکھ رہا تھا. Success کا مطلب ہے fruitful ہونا. It means you are fruitful in your relationship, you are fruitful in your education, you are fruitful in relationship with God. اور ایک question جو بار بار بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اور کئی دفعہ اس کا آنسر کرنا پڑتا ہے, how can I be successful in my life? You know, ہم سب ملک پاکستان سے آئے, انڈیا سے آئے, so we want to be successful in this country. اور جب ہم اس ملک میں successful ہونا چاہتے ہیں تو کئی دفعہ ہم اپنے طریقوں کو اپناتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ طریقہ کامیاب رہے گا, شاید یہ کرنے سے میرے بچے کامیاب ہوں گے. You know, میں نے ایک چیز جو موسٹلی ان دنوں دیکھی اور اپنی منسٹری میں موسٹلی وہ لوگ جو خداوند میں زندگی بسر کر رہے ہیں, they are not living victorious life. میں نے ایک چیز دیکھی کہ بہت سارے لوگ they are living a defeated life. They are living a defeated life, not a glorious life. لیکن خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے ہر یوتھ کا یہ ڈریم ہے کہ میں اپنی زندگی میں سکسیسفل بنوں. ہر شخص کا یہ خواب ہے کہ میرے پاس فائنینشل سیکیورٹی ہو. ہر شخص فیم اور پاپولیرٹی کو چاہتا ہے, جب میں اس دنیا میں ہوں تو لوگ مجھے جانیں اور مجھے پہچانیں, اپنی جاب پر مجھے اچھی پوزیشن ملے تاکہ لوگ مجھے جان سکیں. اور جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں, لوگ کس طرح سے سیاروں پر جا رہے ہیں, انٹرنیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا. We are living in a cyber age. We have too much information, لیکن وہ ساری انفارمیشن کو ہم سنبھال نہیں پا رہے. We have information, but sometimes people don't understand the will of God. They have information of this world, but they don't understand the will of God. اور جب میں اس پیسج کو پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں, اور I was just praying about that, کہ خداوند نے ایک ریسپی دی ہے how you can know the will of God. In other words, you can say how you can be a successful in your life, how you can be a successful God's disciple, how you can be a successful church member, اور اپنی جس جگہ پر بھی آپ کام کر رہے ہیں کس طرح سے آپ اپنی زندگی میں سکسیس دے سکتے ہیں. اور جب میں اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ کتنی ایبلٹی ہے, کتنا انفارمیشن ہے, لیکن لوگ اپنی زندگی میں, اگر آپ دانیل کی کتاب 12 باب اس کی 4 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ آخری دنوں میں دانش افزوں ہوگی. آخری دنوں میں کیا لکھا ہے؟ دانش. انفارمیشن بہت ہے, ہماری دانش بہت بڑھ چکی ہے, ہم سب کچھ جاننا چاہتے ہیں, لیکن ابھی تک ہم خدا کی مرضی کو نہیں جان پا رہے. ہم اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے میری زندگی کے لیے, خدا کی مرضی کیا ہے میرے بزنس کے لیے. اور 152 times in Old Testament یہاں پر ورڈ آیا ہے trust in the Lord, اور یہاں پر کیا لکھا ہے verse 5 میں؟ سارے دل سے خداوند پر توکل کر. کیا لکھا ہے؟ سارے دل سے خداوند پر توکل کر. Trust in the Lord with your whole heart. ہم اپنے پورے دل سے خداوند پر توکل کریں. کیوں ترقی نہیں ہو رہی؟
क्यों हम खुदावंद की मर्जी को नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हम पूरे दिल से खुदावंद पर तवक्कल नहीं कर रहे। हमारा तवक्कल डिवाइडेड है। हमारा ट्रस्ट उसमें हमारा आधा दिल शामिल है, आधा नहीं है। हम खुदावंद को मानते हैं लेकिन उस पर पूरा ट्रस्ट नहीं करते। और उसकी वजह क्या है? Why we don't trust in God? Why we don't trust in Jesus? Why we don't trust in Holy Spirit? Because we don't know about God. उसकी वजह क्या है? कि हम खुदा को अभी तक जानते नहीं हैं। क्या लिखा है? सारे दिल से खुदा पर तवक्कल कर। ये रेसिपी है आपकी कामयाबी के लिए, आपकी खुशी के लिए। तो उसमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है? ट्रस्ट। ट्रस्ट। यू हैव टू ट्रस्ट होल हार्टेडली। और कई दफा ये है कि अगर बाहर से कोई शख्स आए और वो मुझे कहे कि आप मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं, तो मैं उसको उस पर पूरा भरोसा नहीं करूंगा, because he is a stranger to me. So God is strangers to us because people don't know about God. लोगों के अंदर ये चाहत नहीं है कि वो खुदा के मुतालिक जाने, और इसीलिए वो खुदा की मर्जी को भी नहीं जानते। Knowing God means you have to depend fully. अगर आप खुदावंद पर ट्रस्ट करेंगे, if you depend, अगर आप खुदावंद को जानेंगे, then you will trust in him. आप fully उस पर डिपेंड करना शुरू कर देंगे। और आज कल का नौजवान कलीसिया के तौर पर मैं एक चीज की कमजोरी पाता हूँ। कई दफा मैंने यूथ में और कलीसिया में ये कमजोरी पाई है, और वो क्या है कि हमारा कंप्लीट कॉन्फिडेंस खुदा के ऊपर नहीं है। We don't have complete confidence in God. We don't depend on God completely. हम खुदावंद के ऊपर कंप्लीट डिपेंड नहीं करते। मैं एक हवाला चाहता हूं आप मेरे लिए पढ़ें। 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapter 17. सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया न कर। जब हम अपने फहम पर तकिया करते हैं तो फिर हम खुदा की मर्जी को नहीं जानते। फिर हम अपने फहम पर जो हम सोचते हैं कि दिस इज व्हाट, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक है। लेकिन यहां पर खुदावंद क्या कहता है? सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर, ट्रस्ट इन हिम। अगर आप मेरे लिए वर्स 25 पढ़ें, 1 Samuel chapter 17 verse 25. तब इस्राएली मर्द यूं कहने लगे, तुम इस आदमी को जो निकला है देखते हो, यकीनन ये इस्राएल की फजीयत करने को आया है। तो जो कोई उसको मार डाले उसे बादशाह बड़ी दौलत से निहाल करेगा और अपनी बेटी उसे ब्याह देगा और उसके बाप के घराने को इस्राएल के दरमियान आजाद कर देगा। ओके, और इसके बाद मेरे लिए पढ़ें वर्स 45। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने इख्तियात की है, तेरे पास आता हूँ। और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारकर तेरा सर तुझ पर से उतार दूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है। ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक ही खुदा है। अगर आप इस पैसेज को पढ़ते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि दाऊद जब गोलायत के साथ बात करता है, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट, वो अपनी पावर पर डिपेंडेंट नहीं है। वो किस पर डिपेंडेंट है? खुदा पर। उसका कंप्लीट कॉन्फिडेंस किस पर है? खुदा पर। और वो यहां पर क्या कह रहा है
कि तू भाला और बर्छी लिए मेरे पास आता है, लेकिन आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं, और लिखा है इस्राएल के लश्करों का खुदा जिसकी तूने फसीयत की है, तेरे पास आता हूं और आज वो तुझको मेरे हाथ में कर देगा। अ कंप्लीट कॉन्फिडेंस, पूरा तवक्कल, अ कंप्लीट ट्रस्ट। दाऊद की इस स्टेटमेंट में आपको कोई शक नजर नहीं आएगा। दाऊद की स्टेटमेंट में आपको कुछ ये नजर नहीं आएगा कि वो 98% कह रहा है या 50% या 60%। He is saying completely, and he is challenging that today God is going to do this for me. Today God is going to do this for his nation. वो कंप्लीट स्टेटमेंट देता है। और कई दफा हमारी जिंदगी में नाकामी क्यों आती है? क्योंकि हम कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं देते। हमारी जिंदगी में शक होता है। कलाम में क्या लिखा है कि तू अपने पूरे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर। हम पूरे दिल से खुदावंद पर तवक्कल नहीं करते। हम कहते हैं शायद खुदावंद कर दे, शायद ऐसा हो जाए। हमने कभी इस तरह से नहीं दुआ की शायद कि आज खुदावंद मेरे लिए ये मौजज़ा करेगा। और हम डेविड की, मैं जब इस स्टेटमेंट को पढ़ रहा था, आई वॉज इनकरेज्ड कि किस तौर से उसने ये स्टेटमेंट दी, एंड ही वॉज श्योर अबाउट दैट कि खुदावंद आज उसकी मदद करेगा। और अगर खुदावंद डेविड की मदद करेगा तो खुदावंद मेरी और आपकी भी मदद करता है। आमीन। तो खुदावंद हमें क्या चाहता है कि हमें क्या करना है? अगर विक्टोरियस लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ अपनी जिंदगी में गुजारनी है तो सबसे पहला काम क्या करना है? पूरा तवक्कल। पूरा तवक्कल किस पर करना है? खुदावंद पर। अपने बॉस पर नहीं करना, अपनी कंपनी पर नहीं करना, अपनी एजुकेशन पर नहीं करना। किस पर करना है? खुदावंद पर। God is going to do for me. खुदावंद इस सिचुएशन को मेरी फेवर में कर देगा। हमें अपने दिल पर तवक्कल नहीं करना। लिखा है कि अपने फहम पर तकिया ना कर। जो कुछ तू सोचता है उस पर तकिया ना कर। यू नो व्हाई हम क्यों खुदावंद पर तवक्कल नहीं करते? क्योंकि खुदा अभी तक हमारे लिए स्ट्रेंजर्स है। हम उसको इतना जानते नहीं, हम उसके मुतालिक पढ़ते नहीं, और हम उसको जानना नहीं। जितना आप खुदावंद को जानेंगे उतना ज्यादा आप उससे इंटीमेट होंगे। जितना आप बाइबल को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप खुदावंद के मुतालिक, यीशु के मुतालिक जानेंगे, उतनी भूख और प्यास आप में बढ़ती चली जाएगी। और आप भी दाऊद की मानन इसी तौर से स्टेटमेंट देंगे कि आज खुदावंद ये करेगा। अगर आप बीमार होंगे आप कहेंगे कि हाँ मेरा खुदा ये कर सकता है। आपके दिल में शक नहीं आएगा। आपको पता है कि आपका खुदा बहरे कुलज़म को दो हिस्से कर सकता है। आपको पता है कि आपका खुदा जिसने जमीन और आसमान को बनाया, आपको पता है कि आपका खुदा उन चीजों को बुला लेता है जो नजर नहीं आती। You know your God and you can proclaim better, और आप कंप्लीट कॉन्फिडेंस उस पर डाल सकते हो। आमीन। जब हम उसे जानेंगे तो फिर हम वो हमारे लिए स्ट्रेंजर नहीं रहेगा। You know, I was just thinking about that कि it is hard to believe किसी स्ट्रेंजर पर, तो इसलिए खुदा को जानने के लिए उसके पास जाना बहुत जरूरी है। और मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि जब हम किसी को जानते हैं तब हम उससे प्यार करते हैं। अगर आपके सामने कोई स्ट्रेंजर खड़ा हो, आप उससे प्यार नहीं करते क्योंकि वो स्ट्रेंजर है। लेकिन अगर आप किसी को जानेंगे then you will start loving him, और फिर जब आप उससे प्यार करेंगे तो आप उस पर एतमाद करना शुरू कर देंगे। आपका ट्रस्ट उसके ऊपर बढ़ता जाएगा, और जैसे आप उस पर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे आप उसे ओबे करना शुरू कर देंगे, और जैसे आप ओबे करेंगे ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आना शुरू हो। लेकिन ये कब शुरू होता है? जब आप उसे पहले जानते हैं। जब आप जानेंगे आप मोहब्बत करेंगे। आप मोहब्बत करेंगे तो तवक्कल करना शुरू कर देंगे। तवक्कल करेंगे तो हुक्म भी मानना शुरू कर देंगे, और हुक्म से फिर ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएगी। सो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग पर भरोसा नहीं करना। एक हवाला पढ़िए, यिर्मयाह चैप्टर 10 वर्स 23 to 24। जल्दी से पढ़ लीजिए।
Jeremiah chapter 10, verse 23 to 24. मैं जानता हूँ कि इंसान की राह उसके इख्तियार में नहीं। इंसान अपनी रविश में अपने कदमों की रहनुमाई नहीं कर सकता। ऐ खुदावंद मुझे तंबी कर, पर मैं अंदाजे से अपने कहर से नहीं। ना हो कि तू मुझे नाबूद कर दे। ऐ खुदावंद उन कौमों पर जो तुझे नहीं जानती और उन घरानों पर जो तेरा नाम नहीं लेते अपना कहर उड़ेल दे, क्योंकि वो याकूब को खा गए, वो उसे बिगड़ गए और चट कर गए और उसके मस्कन को उजाड़ दिया। हाँ जी, थैंक यू। कलाम में लिखा है 23वीं आयत में, ऐ खुदावंद मैं जानता हूँ कि इंसान की राह उसके इख्तियार में नहीं। हमने लिखा है कि किस राह पर हमें तवक्कल करना है, किस पर हमें तवक्कल करना है? खुदावंद पर, अपने फहम पर तवक्कल। क्यों हमें अपने फहम पर तवक्कल नहीं करना? यर्मिया क्या कहता है कि ऐ खुदावंद मैं जानता हूं कि इंसान की राह उसके इख्तियार में, इंसान को तो पता ही नहीं है कि उसे किस तरफ चलना है। इसलिए इंसान को अपने फहम पर तवक्कल नहीं करना कि वो क्या सोचता है, उसे किस पर तवक्कल करना है? खुदा क्या कहता है, नॉट मैं क्या सोचता हूं, खुदा क्या कहता है। क्योंकि इंसान को तो यह भी नहीं पता कि उसकी राह उसके इख्तियार में नहीं है और अपनी रविश में अपने कदमों की वो रहनुमाई नहीं कर सकता। वो अपनी रहनुमाई नहीं कर सकता, अपनी रहनुमाई नहीं कर सकता, वो दूसरों की रहनुमाई क्या करेगा? इसलिए खुदावंद ने हमें पाक रूह दिया और कहा कि अपने फहम पर तवक्कल नहीं करना, बल्कि जब मुश्किल हो तो हमें किससे मांगना है? ऐ पाक रूह तू हमें गाइड कर, लीड कर, हमें बता कि इस सिचुएशन में हमें क्या करने की जरूरत है। एक वाकया जब मैं जोशुआ की किताब में से पढ़ता हूँ तो वहां पर मैं आई वाज स्टडीइंग कि किस तौर से कई दफा जब हम अपने फहम पर तकिया करते हैं। पढ़ लीजिए जोशुआ चैप्टर 9, जल्दी से निकालिए। और है कि ये रिश्ते थे जो हमने घर लिए थे, नए थे, और देखो ये तो फट गए, और ये हमारे कपड़े और जूते दूर दराज सफर की वजह से पुराने हो गए। तब इन लोगों ने उनके तोशा में से कुछ लिया और खुदावंद से मशवरत ना की, और यहोशुआ ने उनसे सुलह की और उनकी जान बख्शी करने के लिए उनसे अहद बांधा, और जुमात के अमीरों ने उनसे कसम खाई, और उनके साथ अहद बांधने से 3 दिन के बाद उनके सुनने में आया कि ये उनके पड़ोसी हैं और उनके दरमियान ही रहते हैं। और बनी इस्राएल कूच करके 30वें दिन उनके शहरों में पहुंचे। जबनून और कफीरा और बेरोत और करीत यरीम उनके शहर थे, और बनी इस्राएल ने उनको कत्ल ना किया, इसलिए कि जुमात के अमीरों ने उनसे खुदावंद इस्राएल के खुदा की कसम खाई थी, और सारी जुमात उन अमीरों पर फुड़फुड़ाने लगी। थैंक यू। सिर्फ बैकग्राउंड आपको बताऊंगा कि जब हम अपने फहम पर तकिया करते हैं, जब हम अपनी अकल पर तकिया करते हैं, जब हम पूरा खुदा पर तवक्कल नहीं करते, तो यहाँ पर एक सिचुएशन हम देखते हैं कि कुछ लोग यहोशुआ के पास आते हैं और वो प्रिटेंड करते हैं कि वो दूर दराज से आए हैं, वो उनके बीच में ही रहते हैं, और वो अपने कपड़े गले सड़े पहनकर आ जाते हैं और उनको बताते हैं कि हम दूर से आए हैं, और उनसे कसम ले लेते हैं कि आप हमें कत्ल नहीं करेंगे। तो जब वो उस कौम के बीच में 2 दिन बाद उन्हें पता लगता है कि ये तो साथ वाले गांव से आए थे, तो चूंकि उन्होंने कसम खाई होती है तो फिर वो उन्हें कुछ नहीं कहते और उन्हें वहां से निकलना पड़ता है। जो वर्ड यहाँ पर मैं चाहता हूं गौर करें, लिखा है और उन्होंने खुदावंद से मशवरत ना की, और उन्होंने खुदावंद से मशवरत ना की। जब लोग अपने फहम पर तकिया करते हैं, खुदा से मशवरा नहीं करते, तब ऐसे इंसिडेंट हमारी जिंदगी में आते हैं। अगर आप कोई कारोबार शुरू करते हैं, अगर आप कोई काम शुरू करते हैं, अगर आप कॉलेज में जाते हैं, अगर आप शादी के लिए कोई डिसीजन बनाते हैं, और अगर आप अपने फहम पर तकिया करते हैं, and if you think what you have decided this is all right,
और अगर आपने पाक रूह से खुदावंद पर तवक्कल नहीं किया तो आपका फहम आपको धोखा भी दे सकता है, क्योंकि उसमें खुदावंद की मर्जी शामिल नहीं है। और अगर आप सक्सेसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं तो आपको पूरा तवक्कल किस पर करना पड़ेगा? खुदावंद। हो सकता है खुदावंद आपको कहे नहीं ये एजुकेशन ठीक नहीं है, हो सकता है खुदावंद आपको कहे ये जॉब ठीक नहीं है, हो सकता है खुदावंद आपको कहे ये लाइफ पार्टनर ठीक नहीं है, देन यू हैव टू ओबे। तब आपको उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है, इमसाल की किताब, दोबारा हम उस पर जाएंगे, लिखा है तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन। कई दफा हम अपनी ही निगाह में दानिशमंद बनते हैं और इसीलिए हम धोखा खा जाते हैं। लेकिन खुदावंद हमें क्या सिखाता है? हमें टोटली उस पर डिपेंडेंट होना है, कंप्लीट कॉन्फिडेंस उसको देना है और हमारी कंटिन्यू मुसलसल सबमिशन उसके साथ होनी चाहिए। पूरी सबमिशन, अपने पूरे दिल से उसको सर्च करना है और फिर खुदावंद हमारी मदद करेगा। कई दफा हम क्यों लैग कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हम एक दिन दुआ करते हैं और दूसरे दिन दुआ नहीं करते। और फिर आगे क्या लिखा है कि तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। So we must acknowledge God in all things. कुछ हिस्सों में नहीं, सिर्फ खुदावंद को एक्नॉलेज करना कि इस हिस्से में मैं खुदावंद से मशवरत नहीं लूंगा। हमें जिंदगी के हर हिस्से में खुदावंद को अहमियत देनी है। छोटी से छोटी बात में खुदावंद के पास आना है, अपने फहम पर तकिया नहीं करना, अपनी सब राहों में, क्या लिखा है, सब राहों में उससे मशवरत करनी है। फिर हम खुदावंद की मर्जी को जानेंगे और अपनी निगाह में खुद दानिशमंद नहीं बनना कि जो मैं करता हूं वो ठीक है। अगर हमें खुदावंद डायरेक्ट कर रहा है, अगर हम उस पर डिपेंडेंट हैं, तो फिर वो हमें डायरेक्ट भी करता रहेगा। यू नीड टू ट्रस्ट इन हिम कि God is going to direct you in your life. मैं इस बात के लिए जो आज पार्टनरशिप की, we have been praying for last 10 years. हम दुआ करते रहे, हम इस बात के लिए खुदावंद के आगे झुकते रहे हैं। और कई दफा इससे पहले भी, in 2006 I was asked to be a part of MCBC। तो खुदावंद की उस टाइम मर्जी नहीं थी, मैंने कहा कि मुझे आप कुछ साल और दीजिए, मैं इसके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं खुदावंद की डायरेक्शन को लूँ और मैं ये चाहता हूँ हम टोटल डिपेंडेंट खुदावंद पर हूँ। हम अपनी विजडम से ये काम ना करें कि हमें फायदे क्या होंगे। वी आर नॉट लुकिंग फॉर एक दूसरे के एडवांटेजेस कि हम एडवांटेजेस हमें क्या मिलेंगे। वी आर लुकिंग कि क्या इस काम को करने से खुदा के नाम को जलाल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या इस बात में खुदावंद की डायरेक्शन है या नहीं। हम अपने फहम पर तकिया नहीं करते और ना ही अपनी निगाह में दानिशमंद बनकर ये डिसीजन ले रहे हैं। हमने ये कहा खुदावंद अगर तेरी मर्जी है तो तू ये चीजें होने देगा, अगर तेरी मर्जी नहीं है तो ये यहीं पे स्टॉप। आज भी जब मैं बात कर रहा था तो दिल में यही दुआ थी, अगर तेरी मर्जी होगी तो खुदावंद न होगा। अगर इसमें कोई लालच शामिल है, अगर इसमें कोई ऐसी चीजें शामिल हैं कि ये हमारे लिए हो, नो, we just want to be prosper in our ministry. We just want to glorify His name in a broader way. We just want to ignite Jesus. हम यीशु को अपनी जिंदगियों में जलाल देना चाहते हैं और वो कब होगा? जब उसकी डायरेक्शन हमारे साथ रहेगी। आमीन। जब हम पूरा डिपेंडेंट होंगे, जब उसकी डायरेक्शन हमारे साथ रहेगी। And you know how we can get His direction? क्यों हमें उसकी मर्जी कई दफा पता नहीं लगती? Why? क्योंकि हम अपने लिए उसकी डायरेक्शन को नहीं लेते और उसकी डायरेक्शन को लेने के लिए हमें खुदा का कलाम पढ़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? If you really wanted to know more about God, अगर आप चाहते हैं खुदा के मुतालिक जाने, अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, अगर आप उसकी डायरेक्शन को लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? थ्रू वर्ड ऑफ गॉड यू कैन गेट डायरेक्शन। आमीन, हालेलुया। खुदावंद ने हमें कलाम दिया है, लिखा है तेरा
कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आप खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं अपनी जाती जिंदगी के लिए, बिजनेस के लिए, तो आपको कलाम पढ़ने की जरूरत है। और कलाम में हर तरह की डायरेक्शन आपको मिलेगी। खुदा का कलाम आपको अंडरस्टैंडिंग देगा। ज़बूर 119 104 में क्या लिखा है, जरा पढ़ दीजिए। ज़बूर 119 निकालिए। तूने अपने कवानीन दिए हैं ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। काश के तेरे आईन मानने के लिए मेरी रविशें दुरुस्त हो जाए। हाँ जी, तूने कवानीन दिए हैं ताकि मेरा दिल उनको माने। तूने कवानीन दिए हैं ताकि मेरा दिल उनको माने। और फिर 130 भी आज पढ़ दीजिए कि ये आपकी जिंदगी में रोशनी को लाती है। आप क्या स्टेप उठाना चाहते हैं, खुदा का कलाम खुदा की मर्जी को आपकी जिंदगी में जाहिर कर देगा। पढ़िए जरा 130 आए। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती। हाँ जी, क्या लिखा है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और वो सादा दिलों को क्या बना देती है। अगर आप चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही अपनी जिंदगी के लिए, अपनी स्टडीज के लिए, अपनी लाइफ के लिए, आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्यों शिकस्त खुर्दा जिंदगी बसर कर रहा हूं, क्यों मेरी जिंदगी में आजमाइशें हैं, तो आपको क्या करने की जरूरत है। आपको टोटल डिपेंडेंट होना है खुदावंद पर। और फिर डायरेक्शन किससे लेनी है, खुदावंद से। और डायरेक्शन कैसे आएगी, जब हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे। जब कलाम पढ़ेंगे तो लिखा है सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। कलाम पढ़ने से हमें समझ आ जाएगी कि हमें क्या करने की जरूरत है। और आज मैं ये समझता हूं हमारी यूथ और हमारे यंग बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। हमारे कई बच्चे, उनको डायरेक्शन नहीं मिलती, उन्हें समझ नहीं आती कि क्या करना है उन्हें अपनी जिंदगी में। जब वो अपनी एजुकेशन को चुनते हैं, जब वो अपनी जिंदगी के साथी को चुनते हैं, तो वो सिर्फ अपने दिल की बात को सुनते हैं और वो खुदा के कलाम को नहीं सुनते कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है। वो ये सोचते हैं उन्हें क्या अच्छा लग रहा है। और अगर आप अक्लमंद बनना चाहते हैं तो क्या करने की जरूरत है, कलाम पढ़ें। सादा दिलों को होशियार बनाती है। अगर आप होशियार बनना चाहते हैं, और फिर कलाम हमारी जिंदगी में ईमान को पैदा करता है। लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। तो आपकी जिंदगी में डायरेक्शन कलाम लाएगा और आपके ईमान को बढ़ाता जाएगा और आपको खुदा की मर्जी पता लगेगी कि खुदा की मर्जी। और खुदा की मर्जी क्या है कि हम रूह से मामूर होते जाएं। ये भी खुदा की मर्जी है। शराब में मतवाले ना बने, इससे बदचलनी पैदा होती है, बल्कि रूह से मामूर। खुदा की मर्जी है कि आप एवरीडे उसके मसा में बढ़ते जाएं। खुदा की मर्जी है, लिखा है पतरस 2 पतरस 3 बाब 9 कि कोई शख्स हलाक ना हो। खुदा की मर्जी है कि उसका चर्च एवेंजलिज्म का काम करे। खुदा की मर्जी है कि हम और मजबूत बॉडी बनकर हम खुदा की ग्रेट कमीशन को इस दुनिया में लोगों तक लेकर जाएं। हम इस दुनिया में आए हैं नॉट जस्ट टू डू और ऑन वर्क। हम सिर्फ अपना काम करने नहीं आए। वी आर हियर टू ग्लोरीफाई गॉड। वी आर हियर टू ग्लोरीफाई जीसस क्राइस्ट। वी आर हियर टू ग्लोरीफाई हिज नेम। और खुदावंद ने ये कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो। हम नूर बनकर इस तारीकी में चमकने के लिए आए हैं। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आइए हम अपने फहम पर तकिया ना करें। यहां पर लिखा है सारे दिल, गौर कीजिए क्या लिखा है, सारे दिल से तवक्कल करना है, आधे दिल से नहीं। तो जब आप दुआ करते हैं, आप थके हुए हैं, आपको नींद आ रही है, तो आपका दिल पूरा नहीं है। आप काम पर जाना चाह रहे हैं, आप जल्दी जल्दी बाइबल खोल के पढ़ रहे हैं, आपका दिल नहीं है। आप आधी दिल में खुदावंद पर तकिया कर रहे हैं, आधे दिल से नहीं। इट मीन्स आप याद रख लें कि आपको उस दुआ का जवाब नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसमें पूरा तवक्कल नहीं है, पूरा ट्रस्ट नहीं है, अपने फहम पर नहीं। वी नीड टू एक्नॉलेज जीसस क्राइस्ट हर हिस्से में। ये नहीं है कि अब ये मेरा जाती मामला है, यीशु तू थोड़ी देर बाहर बैठ जाए, इसको मैं खुद निपटाऊंगा। हमें हर हिस्से में खुदा उनको इन्वॉल्व करना है।
हमारी जिंदगी में उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और फिर लिखा है दानिशमंद नहीं बनना, डायरेक्शन उससे लेनी है, उस पर डिपेंड करना है और दुआ करनी है। दुआ करने से खुदावंद आपको गाइड करता रहे। और पहली सदी की कलीसिया जब उनको जरूरत पड़ती खुदावंद से डायरेक्शन लेने के लिए, मर्जी जानने के लिए, तो वो दुआ में बैठते थे। वो क्या करते थे? कितना हम दुआ करते हैं। कई दफा हम एक दूसरे से बात करते हैं और हम दुआ नहीं करते, हम खुदावंद के पास नहीं आते, हम उससे कहते नहीं हैं। खुदावंद हमें डायरेक्ट करता है। आपको पता है खुदावंद आपके दिल को तैयार कर, नहमीया की किताब में लिखा है, अमाल की किताब में लिखा है 8वें बाब उसकी 29 वर्ष में कि खुदावंद के फरिश्ते ने फिलिप्पस को कहा कि हबशी खौजा है, वो वहां पर जा रहा है। तो उसके बाद क्या लिखा है कि पाक रूह ने उससे कहा कि तू उसके करीब हो जा। पाक रूह हमें डायरेक्ट करता है, हमें तैयार कर देता है। जब हम दुआ में होते हैं पाक रूह आपको डायरेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो, अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी फ्रूटफुल हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में फल लगे, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपसे बात करे, तो आपको खुदावंद को जानने की जरूरत है, आपको कलाम पढ़ने की जरूरत है, आपको मुझे और आपको दुआ करने की जरूरत है। और फिर आखिरी बात हम पढ़ेंगे कि खुदावंद की मर्जी क्या है, हमें क्या करने की जरूरत है। कि इट इज गॉड्स विल दैट वी शुड बी सैंक्टिफाइड। पहला तसल्लीकियों 4 बाब उसकी 3री आयत पढ़ दीजिए। मैं दरखास्त करूंगा इस हवाले के बाद क्वायर के जो मेंबरान हैं वो आगे आ जाएं। चुनांचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो, और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने। हाँ जी, क्या लिखा है? खुदा की मर्जी क्या है? कि तुम पाक बनो, कि तुम सैंक्टिफाइड हो, तुम होली जिंदगी गुजारो। खुदा की मर्जी है कि तुम रूह से मामूर होते जाओ। खुदा की मर्जी है कि किसी की जान हलाकत तक ना पहुंचे। खुदा की मर्जी है कि हम क्या हों? पाक हों, हमारी जिंदगी में होलीनेस हो, हमारी जिंदगी में कोई गंदगी की बातें ना हो, हमारी सोचों में गंदगी की बातें ना हो, हमारी बातों में ये चीजें ना हो। ये खुदा की मर्जी है। और वो कब होगा? जब आप पूरा उस पर डिपेंडेंट होंगे। याद रखें, जब खुदा की मर्जी किसी चीज में होती है तो वो हमारे रास्ते साफ कर देता है। वो कोई रुकावटें जो पहले से होती हैं उनको दूर कर देता है। और अगर किसी चीज में खुदा की मर्जी ना हो तो फिर दरवाजे बंद होते जाते हैं। लेकिन अगर किसी बात में खुदा की मर्जी हो तो वो चीजें खुलती चली जाती हैं और हम बरकत पाते जाते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आइए हम अपना पूरा तवक्कल खुदावंद पर करें। अगर आप इस मुल्क में आए हैं तो अपना पूरा कॉन्फिडेंस उसको दे दें, पूरा तवक्कल, हाफ नहीं, पूरे तौर पर उसको माने।